winters have arrived in India, and that means only two things for sports enthusiasts like me, Sushank, and many more out there. It is the late night Premier League football and early morning cricket down under. So it is that time of the year which takes us to a nostalgic trip down the memory lane. And to talk everything about it, I would like to welcome Sushank, who has been extremely eager to cover everything about this segment because he has been following up with me about this particular upcoming series, and we wanted to cover it. So, welcome, Sushank. Thanks, Ashashwa. Before we get this podcast rolling, let's just relieve a few things or just relieve the passion of this series through a small video. Right. Yeah. Border Gavaskar Trophy. So, as the video says, Yeah. this is the Border Gavaskar Trophy decoded, along with Yashaswa and myself, Sushank. And Yeah. as Yashaswa said, we can't wait to start this brand new series of cricket along with you all. Right. But this is going to be an interesting conversation that we're going to have it over here in JPL Talkies because over the years we've been like extremely passionate about cricket, and what better way than covering everything about India and Australia, two cricketing giants who are ranked first and second, and it is going to be the lush green outfields. सुबह उठ के वो 5 साढ़े 5 बजे चाय पीना, ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है, वो ये एचडी में सब देखने को मिलना. अब तो खैर एवरीथिंग इज इन एचडी, सो quality Correct. of viewing is going to be different, like the entire experience is going to be crazy, and the way we are hearing about the pitches and all, so it is going to be a very passionate and very competitive series, I believe. फॉर श्योर आई कंप्लीटली एग्री विथ यू मतलब सालों साल हमको कहा जाता है मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मैच बट इंडिया Right. ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो होती है आई थिंक वी हैव ग्रोन अप विद दिस जब से बड़े होते थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज बीन स्पेशल स्पेशली डाउन अंडर आई मीन कभी वो जो होते थे ना द शैज एंड वैश शो वो हम लोग Yes. कुछ भी मिस नहीं करते थे वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मतलब सुबह जल्दी उठ के वो मैचेस देखना दिस हैज ऑलवेज बीन अ फैसिनेशन और ऑस्ट्रेलिया में एक अलग ही चैलेंज आता है एक अलग ही मजा आता है एंड यू आर राइट दोस लश ग्रीन आउटफील्ड्स वेयरइन the ball runs and the batsman can even run 5 runs on those outfields. So Exactly. it's crazy. So Yes. can't wait to get this rolling. And starting with this series, the first test match is going to be played at Optus Stadium, Perth. And this was we would like to know from you कि पिच को लेके आपको क्या लगता है? How is it going to play? It is going to be graveyard for batsmen, I believe, the way the curator has come up with his statement. So I believe it is going to be a very difficult track for the batsman. It is going to be very bouncy. Pace is going to Yeah, be extreme, and the carry towards the keeper or the slip is going to be very consistent. Because Perth has been known for such type of wickets over the years, and in Optus Stadium, कैसा रहा है कि लास्ट टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो वहां पर देखा हम लोगों ने कि काफी बाउंस था, पेस वाज एक्सट्रीम, एंड व्हाट आइजैक मैकडोनाल्ड टोल्ड was I'm trying to replicate this as the last game only. Probably the bounce could be on the lesser side, not on the lesser side because India में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है. But when I talk about Australia, so when I'm comparing the lesser part of it, it is between this game and the last game between Pakistan. So they are, pretty much lining up everything in terms of the Australian environment only. It is going to be competitive because they have a very fiery attack in Hazelwood, Stark, Cummins as well, and then we also are no less. The Bumrah is there, although Siraj has performed well in the last series, but last series down under. But
I believe like we have a competitive bowling attack, and under the leadership of Bumrah, this is going to be interesting because True. over the years we have seen like Rohit Sharma and Virat Kohli leading the pack, but this is going to be a different ball game altogether. And Optus Stadium Perth, which probably has a capacity of 60,000, as when we were discussing about it, you were saying that this stadium is notoriously known for not filling up, but we are Indians, हम Yeah. लोग इसका टेंशन मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों, हम लोग पूरा स्टेडियम फिल कर देंगे भाई तुम्हारा। तो ये तो पक्की बात है कि स्टेडियम की, और ऐसा लगेगा भी नहीं कि वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वेयर एवर इंडियंस ट्रैवल, the support that they Yeah. get from the fans, it automatically turns into an Indian stadium basically. वही चिल्ला चोट, वही पैशन, तो ये पैशन ही है क्रिकेट के लिए, जो आपका है, मेरा है, ऐसे मेरे ऐसे लाखों लोगों का है, which drives us crazy. Today is True. 20th November. We have taken over the 19th November wala challenge away, and that is the reason why we're covering it today. Just 2 days to go for Border Gavaskar Trophy, and I just wanted to know, Sushant, technically, if we talk about this Optus Stadium, so how has the things been over the years, and आप क्या expect कर रहे हो overall? सी यशस्व ये जो क्रिकेट है ऑप्टस स्टेडियम, ये दिस इज अ न्यू स्टेडियम। ये लगभग 5 साल पहले बनाया गया था। सो पर्थ Mhm. बेसिकली हमेशा जाना गया है फास्ट विकेट्स के लिए। और जो विकेट थी पर्थ की, जो एकदम फास्ट विकेट बोली जाती थी पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वो पिच और वो सरफेस पूरा रिलेट कर दिया गया था 5 साल पहले। तो ये जो Right. विकेट पे हम लोग खेल रहे हैं, इससे आज से पहले सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेली गई है। और द थिंग टू नोट इज, ये चारों टेस्ट मैच में पूरा ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस रहा है। मतलब they have defeated West Indies, New Zealand, Pakistan, and one more side. So 4 sides को उन्होंने यहाँ पे डिफीट किया है। So they are leading 4-0 over here. Also important चीज ये है, विकेट बहुत फास्ट है, बट यहाँ पे Right. फोर्थ इनिंग्स का जो स्कोर है वो बहुत कम है। सो इट्स नॉर्मली चारों इनिंग में बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं कि फील्डिंग पहले कर लो करके, बट यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैट फर्स्ट बिकॉज द साइड बैटिंग फर्स्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स, they have scored maximum amount of runs. So, and then the team batting second in the second inning has crumbled under pressure always. Australia has been on the winning side. So that's the most important factor. For Indians, Perth has a great memory. Back in 2008, हम लोग पर्थ में Yes. जीते थे। ये सेम ग्राउंड नहीं था, बट ये वही विक्ट्री है जहां ईशांत शर्मा ने पॉइंटिंग को Point. रुलाया था, जहां सहवाग ने बोले था एक ओवर डालेगा क्या। मतलब वो तो नानी याद दिलाई थी। तो Yes, वी yes, हैव yes. ग्रेट I remember. मेमोरीज ऑफ पर्थ। यस, वी हैव ग्रेट मेमोरीज ऑफ पर्थ। और 2018 में तो यहाँ पे शेर भी दहाड़ा था, कोहली की सेंचुरी लगी थी यहाँ पे। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। आई थिंक जो बिल्डअप बना है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इस साल, ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया Exactly. ने वहां पे भी मार्केट ऐसे ही किया है इस सीरीज को। आई मीन दिस इज ह्यूज। लाइक इवन ऑस्ट्रेलियंस दे से राइट नाउ कि एशेज से पहले वो लोग ये राइवलरी रखते हैं। तो ये जो क्रिकेट का दर्जा होता है ना, लास्ट सीरीज में हमारे बहुत सारे स्टार प्लेयर्स मिसिंग थे, कोहली नहीं था, एक बुमराह भी बैठा था, रोहित शर्मा एंड में ज्वाइन किया था, बट फिर भी सीरीज का जो ड्रामा था दैट वाज एट इट्स पीक। तो Correct. बहुत मजा आएगा देखने के लिए कि कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वी कैनॉट मिस आउट ओवर हियर इज मार्नस लाबुशेन। Exactly. उसका एवरेज ऑप्टस स्टेडियम में एकदम तूफानी है। ही एवरेजेस मोर देन 100 एंड इट्स अ हंटिंग ग्राउंड फॉर हिम। एंड इन द पास्ट ही हैज आल्सो स्कोर्ड रन्स फॉर हिम, लाइक फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ऑप्टस स्टेडियम पर। कल हम लोग जब अपना पॉडकास्ट करेंगे तो और ग्राउंड स्टैट्स कवर करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज अबाउट ऑप्टस स्टेडियम। Okay. Okay. So मैं थोड़ा सा पिच का देख रहा था। पिच का सीन ऐसा है कि when I went through the photos, it is looking like a very green top, and it is going to be very pacey. So मैंने stats भी देखे, and as you correctly mentioned कि batting first is very important because over the last 2 or 3 matches that have been played over here in Optus Stadium, ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग्स में काफी बड़ा स्कोर करा, and that gave a psychological advantage टू देम। तो 400 450 रन ये बहुत ज्यादा बनाए हैं इन लोगों ने, एंड इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ सीरीज, और फिर सीरीज स्टार्ट करते टाइम पे यू आर स्ट्रेट अवे गिवन अ पिच लाइक दिस, एंड देयर आर इंजरी कंसर्न्स टू व्हिच प्रोबेबली वी आर गोइंग टू कवर नाउ। So उस उन इंजरी कंसर्न्स, बिकॉज दीज आर बिग नेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजंस, then Shubman Gill got injured, KL Rahul has brushed his injury aside. So कैसा है कि
जो हमारा लाइनअप है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, ऑल्दो वी आर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेयर्स हु आर कमिंग इन, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इट माइट टर्न आउट टू बी blessing in disguise, because people don't know much about Nitish Kumar Reddy. Hype तो काफी Yeah. बना है, but let's see whether he fills in the boot of a lot of all-rounders that have been over there. I personally wanted Hardik Pandya to go Yeah. and perform over there in Australia, but then it's a new face, a fresh face in Nitish Kumar Reddy. Then Harshit Rana का नाम आ रहा है, although Shami has Yeah. played well in Ranji Trophy against Madhya Pradesh. I was pretty Yeah. disappointed as a मध्य प्रदेश फॉलोअर कि हम लोग 11 रन से हारे और रणजी ट्रॉफी मैच, एंड इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ शमीज 4 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड 3 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स. तो शमी इज आल्सो कमिंग बैक फ्रॉम हिज इंजरी, एंड देन सिराज अगर परफॉर्म कर गया, वो लेटरल स्विंग अगर सिराज को मिल गया, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू बुमराह बेसिकली, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम बुमराह. एट द सेम टाइम दीस पीपल हैव टू कंट्रीब्यूट अ लॉट. सो ये मेरा एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस है, मतलब जो बिल्डअप हो रहा है उसके साथ में मैं भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट गैदरिंग और थोड़ा बिल्डअप कर रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट था 3-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम. सो उसको ब्रश असाइड करके एकदम से पूरा मतलब पूरा सिनारियो चेंज हो गया. एंड व्हेन यू सेड कि नहीं यार ये वर्ल्ड कप जैसा ही पूरा फील दिया है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, बिकॉज जो दो मैंने देखा ना, ये बिल्डअप इन लोग 2-3 महीने से कर रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, जो इनके बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों को बिठा दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, सो दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ Yeah. दिस. एंड Yeah. 5 टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, ये सब ज्यादा होता नहीं कि हम लोग 5 करें, वी यूजुअली प्ले 4. so it is Correct. going to be very interesting. We are going to cover everything in our coming segments as well, but overall Sushank, कैसा लग रहा है आपको बिल्डअप? What do you think about the entire scenario considering the inexperience of Indian squad and the injury concerns? I think it all boils down to mentality. कौन से मेंटालिटी से फेस कर रहे हैं. You cannot just go aggressive, completely aggressive mode पे. You will have to play down the new ball. So everything is going to depend on the think tank, what they are thinking. ये ऐसा खेल होने वाला है ना कि अगर चल गया तो एकदम मास्टर मूव, हीरो, बहुत सी तारीफें होंगी, और अगर नहीं चला तो इतना क्रिटिसाइज होगा कि आई वुडंट इवन बी सरप्राइज कि अगर गंभीर की कोचिंग भी चली जाए इसके अंदर. बिकॉज न्यूजीलैंड में हमने, इंडिया में जो हुआ वो हमने कभी सोचा नहीं था. 3-0 डिफीट, आई मीन Right. नॉर्म 3-0 इज लाइक अ व्हाइट वॉश जो हमने इंडिया में कभी देखा नहीं था. नाउ एवरीवन इज प्रोबेबली ब्रश दैट असाइड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया डाउन अंडर टूर्नामेंट. और यहाँ पे स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट हार्दिक पांड्या. मतलब when he was bowling in the South Africa right now 2020 matches में, he was clocking 140. I mean, I haven't seen Hardik Pandya clocking 140, और वो पूरा फिट लग रहा था बंदा. तो यार हमने डायरेक्टली अप्रोच लिया है नीतीश कुमार रेड्डी. ही इज अ ग्रेट टैलेंट, नो डाउट अबाउट दैट. बट यार हमने उसको T20 में नहीं खिलाया, हमने उसको वनडे में नहीं खिलाया. डायरेक्टली हम लोग टेस्ट मैच लेके जा रहे हैं. वेयर देयर आर सो मेनी ऑलराउंडर्स जो ग्राइंड कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस इन रणजी ट्रॉफी. तो इट इज गोइंग टू बी इधर अ मास्टर मूव. The same goes with Harshit Rana. Last year we took T Natarajan as a net bowler, but वो बंदा वहां से चमक के आया, all तीनों फॉर्मेट खेल के आया था. So Harshit Rana, if he plays the first match, it would be great because he has that moment. उसने हमेशा ईडन गार्डन्स पे कोहली को और बड़े लाइट्स को परेशान किया when he gets those lateral movement. बट सवाल एक ही है ना कि अगर अगर तुम लोगों ने इसके बारे में सोच के रखा था, तो उसको इंडिया में खिलाया क्यों नहीं? मतलब यू प्रेफर्ड आकाशदीप, इवन इन सर्टन मैचेस यू प्रेफर आकाशदीप ओवर सिराज. अभी आप वहां जाके डायरेक्टली आकाशदीप को बिठा के सिराज को उसके ऊपर कर खिला रहे हो, जब आकाशदीप अच्छा परफॉर्म कर रहा था. हर्षित राणा प्रोबेबली इन द स्क्वाड, आकाशदीप बैठने के चांसेस है. देयर आर स्टिल ऑल जस्ट स्पेकुलेशंस. जब वो इंडिया की लाइकली 11 आएगी तब सब क्लियर होगा. बट लेट्स सी, दिस इज अ मेक और ब्रेक एंड द मेंटालिटी is going to prove everything. And it's a great chance for people like Yashasvi Jaiswal to stamp their authority. I mean, लोगों ने उसके ऊपर बहुत डाउट्स, क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए थे, बट बंदे ने इंडिया में फाड़ दिया सबको. Right. तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करता है, आई बिलीव देन ही हैज टेकन दैट लीप कि ही इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल करके. सो हाउ ही परफॉर्म्स इन ऑस्ट्रेलिया is going to be extremely important because सबने अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली पे डाल के रखा हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट नेम जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट अगर रिवाइव हो सकता है वो है KL राहुल. Oh man. अगर उसको ये
if he doesn't perform in these test matches over here, it's going to be extremely difficult. And it's so sad to see a talent like that get wasted. So अभी सबके हाथ में उनकी नाव है. ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रही है. वार्नर जस्ट रिटायर हुआ है. दे हैव अ न्यू ओपनर इन देयर स्क्वाड. द पेस बैटरी दैट दे हैव, कमिंस, हेजलवुड एंड स्टार्क, वो अपने पीक पे नहीं है. वो अपने पीक राइट. से नीचे आ चुके हैं. सो इफ वी गिव देम प्रेशर, दे आर नॉट इन अ ग्रेट वे टू बोल दोस 8-9 ईयर ओवर का स्पेल. तो यार अगर हम लोग उनको थोड़े प्रेशर में ला सकते तो नथिंग लाइक इट. एंड दिस इज वेयर आई थिंक वी आर गोइंग टू मिस पुजारा लिटिल बिट. आई माइट बी रॉन्ग ओवर हियर, बट पुजारा की याद तो आएगी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में वही बॉल पुराना करता है. So Pujara is going to Australia. I'm telling you, Pujara is going to Australia, but as a commentator. So कुछ ऐसा होगा क्या शशांक कि मतलब कुछ कहीं से इंजरी हो गई किसी को, फिर वो एकदम से मतलब डिसाइड कि नहीं यार पुजारा इज इन ऑन द स्टैंड बाय एंड सिंस ही इज ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसको हम लोग रिजर्व्स में ले लेते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? बिकॉज ऑब्वियसली यार कोई पुजारा का एक्सपीरियंस इज अनमैच्ड कंप्लीटली. कोई और होता तो शायद मैं बोल देता, बट नोइंग गंभीर जितना मैं उसको जानता हूँ, वो बंदा डिटरमिन्ड भी है, उतना ही ढीठ भी है. वो जिसको लेके गए उसी को लेके खेलेगा. तो मतलब आई होप वो होता करके. बट पुजारा ने ऐसा नहीं है. पुजारा आल्सो हैड अ लॉट ऑफ चांसेस. अभी सब लोग पुजारा इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग 3-0 हार चुके हैं. वरना कोई राइट. पुजारा का नाम भी नहीं लेता, सब लोग तारीफें करती. तो इट्स अ ग्रेट चांस फॉर अवर न्यू जनरेशन टू टेक दिस ओवर. यार पता चले कि नीतीश रेड्डी ने अपना स्क्वाड फिक्स कर दिया. इट्स अ ग्रेट चांस फॉर समवन न्यू कमिंग इन द स्क्वाड to probably set a benchmark and get an entry and show what they are made up of. इनकी सबकी स्ट्रगल स्टोरी है यार यशस्वी. मतलब हम लोग बोलते हैं कितना इजी होता है हम लोगों को किसी के बारे में कमेंट कर देना, बट राइट. ये सब क्रिकेटर बहुत ही स्ट्रगल करके बिटवीन क्रोर्स ऑफ क्रिकेटर्स ये वो लेवल पे आए हैं. तो यार करेक्ट. इनको वो मौका मिला है जिसके लिए ये रूठे थे. नाउ व्हेन दे वेयर द टेस्ट कैप, which is the most privileged one, will they be able to do justice to this? We have heard that Drew Jurel is going to play over here. हमने उसका नाम नहीं लिया राइट. है, बट यस. बंदे ने बहुत डिग्री दिखाई है. जब इंग्लैंड भी इंडिया में थी, ही वॉज वन ऑफ द रीजन जहां पे टेस्ट मैचेस जब 50-50 स्विंग में था, उसने शुभमन गिल ने और द वे दे परफॉर्म वाज क्रेजी. सो ही इज गोइंग टू गेट अन अपॉर्चुनिटी. एंड यार ही कम्स फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, तो उसके वैसे ही डिसिप्लिन को लेके बहुत तारीफें की जाती है. तो वो राइट. इंपॉर्टेंट है. एंड देन यार देवदूत पडिक्कल को तो चांस ऑफ अ लाइफ टाइम मिला है. जिस एग्जैक्टली. तरह से वो फील हुआ था इंडिया में, उसके बाद तो उसको जबरदस्त चांस मिला है. नाउ इट्स अपॉन हिम कि वो क्या कर सकता है इस चीज का. सो एक क्वेश्चन इससे हुआ है, मतलब जस्ट केम बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट इनएक्सपीरियंस एंड पुटिंग देम इन द बोल ऑफ फायर. मतलब ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्टिंग ग्राउंड फॉर एनी ऑफ द यंगस्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट not just Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel or Nitish Kumar Reddy. I'm specifically talking about Yashasvi Jaiswal. कैसा है कि he has performed very well, extremely well in India. ऐसा सीन तो सदा गोपन रमेश टाइप तो सीन नहीं होगा यार पता नहीं यार. सदा गोपन रमेश तो एक स्टोरी टू टेल है, वो अलग चैप्टर, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं. बट यार यशस्वी जायसवाल आई थिंक बंदे में बहुत भूख है. जिस जिस लेवल से वो ऊपर आया है, आई एम श्योर उसने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तब जाके करेक्ट वो इस मुकाम पे आया है. आई मीन उसका बीच में जब दुबई में हमारा 2020 T20 हुआ था, आईपीएल हुआ था, तब उसके जो वीडियो सरफेस, जब उसके लंबे बाल हुआ करते थे, धोनी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था. हाँ राइट फिर यस उसके वीडियोस आए थे जब उसने श्रीशांत को सिक्स मारा था. आई मीन ही हैज, जो भी आज वो उसकी हाइप हो रही है ना, वी डिजर्व ऑल ऑफ इट बिकॉज बंदे ने वो कमाया है अपनी क्रिकेट की वजह से. बट नाउ इंडिया के बाहर शायद फर्स्ट टाइम वो खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया में इट्स हिज फर्स्ट टूर. he will need all the possible support that's available. And one good thing that's currently happening with Indian team right now is they have Abhishek Nair in their kitty tank. I mean, it's not a big name uh, in terms of coaching and everything, but वो बंदा जिस तरह से mentally players को help करता है ना, दिनेश कार्तिक की रिसर्जेंस, रोहित शर्मा की स्टोरी, वो यंगस्टर्स को बहुत अच्छे से हेल्प करता है. तो वो अच्छे से गाइड कर पाएगा और सपोर्ट दे पाएगा. आई थिंक सो. तो मेरी डर यही है ना कि वी हैव यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल. यशस्वी जायसवाल का फर्स्ट टाइम है, केएल राहुल प्रोबेबली एकदम फॉर्म में नहीं है. आई मीन उसके बाद वी हैव देवदत्त पडिक्कल, and then we have Kohli, who is not again coming from the best of the form. So everything will again depend on the shoulders of Kohli over here, how he takes this team ahead. Although this is for the first test only, because second test match में Rohit Sharma आ जाएगा, but Rohit Sharma has not played a big test match inning for a long time, and so has Kohli. So राइट.
it is upon those young players to probably relieve the pressure of the senior ones and the senior ones to pass on the experience. But this is going to be a very interesting one, wherein one good session. अगर अगर हम लोग टॉस जीत के पहले बैटिंग कर देते तो स्टैटिस्टिकली वी वुड बी ऑन अ हायर एंड हमको लगेगा यार बिकॉज एवरी लाइक 350 प्लस का स्कोर है इन द लास्ट 4 इनिंग्स का एवरेज स्कोर पर्थ में. बट उसके बाद वो बैंगलोर की फर्स्ट इनिंग भी याद आती है वेयर वी कोलैप्स्ड ऑन अ स्विंगिंग विकेट. Right. सो अगर हम लोग पहला सेशन खेल लेते हैं तो नथिंग लाइक दिस. मतलब ये वही स्टेडियम है यार, आपकी जितनी बैट अगर फुल बॉल है तो बैट फ्लैट चाहिए, जैसे वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा करते थे. स्ट्रेट बॉल मारो 3-3 रन दौड़ो, स्ट्रेट बॉल मारो तीन बराबर. तीन रन दौड़ो. तो यार मजा आएगा. इट इज गोइंग टू बी दैट इंटरेस्टिंग फैक्ट. ऑल जो अगर वो एक सेशन हमने खेल लिया ना, देन द प्रेशर इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज जैसे हम लोग आए हैं, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू विन राइट नाउ, स्पेशली इन पर्थ. उन्होंने जानबूझ के तो पर्थ और एडिलेड में पहले 2 टेस्ट मैचेस रखे. So if we could perform in Perth, the Mhm. first couple of sessions, I mean, they will be under intense pressure, Right. because then we have someone called Rishabh Pant who plays the inning out of the box, and Test match is his favorite format. So if you Right. give him some stage, then he will probably escalate that for the team. Correct. Correct. So toss is going to be extremely important. Yeah. The mentality is going to be crucial, and at the same time, the X factor of certain players is going to be very handy. This is what One is point, the crux yeah, of the overall discussion. yeah, one point that you mentioned, Ishwar, would be the captaincy of Jasprit Bumrah. Now, Mhm. जब जसप्रीत बुमराह इंजरी से रिटर्न आया था आयरलैंड सीरीज में, जब कोई Mhm. बड़ा स्टार नहीं था, जसप्रीत बुमराह कैप्टन कर रहा था, एंड ही हैड द लाइक्स ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा एंड विद हिम. ही मेड सम बोल्ड मूव्स ओवर देयर. सो अगर अगर उसको कैप्टनसी मिली है एंड इफ ही डज वेल, आई एम श्योर ही वुड डू वेल. खाली डर इस बात का है ना कि ही इज ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय नॉट एन एक्सपीरियंस साइड. आई मीन सिराज अगर अपना लेवल अप कर दे, हम Yes. समझ जाए ना, मैं यशस्वी जायसवाल के लिए सेम बोलूंगा कि उसका सिराज ना हो बस. बिकॉज एवरीथिंग वाज गोल्ड फॉर सिराज अंटिल ही डिसाइडेड टू मेस एवरीथिंग अप. तो यार अगर वो ऑस्ट्रेलिया में उसको वापस से मिल जाए ना, देन इंडियन बॉलिंग लाइफ लुक्स ग्रेट. एंड आई जस्ट होप दैट शामी टेस्ट मैच खेले, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कोई भी टेस्ट मैच के लिए रेडी हो, बट वो एक मैच आ जाए ना, Exactly. इट विल गिव अ ग्रेट मेंटल बूस्टर टू जसप्रीत बुमराह और कुछ. Correct. 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 So one of the many discussions that we are going to have over the next few months, and this was the first one. When Test series begins, we are going to cover our JPL talkies day by day, and this is what we have lined up for viewers. And basically, it is going to be a very interesting talks. We're going to bring in certain people who are enthusiasts like us. And Sushang, when it comes to technical abilities and technical data gathering, so nobody better than you, who has been bringing in all the important key aspects. These are small things, but very important things when it comes to data analytics. So, looking forward to continue this segment and bring in more clarity about how the sessions are going to be broken down into segments of analysis, and it is going to be fun. Special mentions, वो एक चीज रह गई थी कि when we talk about ऑस्ट्रेलिया, तो एक नोस्टैल्जिया का एक पार्ट है वो स्कोर कार्ड जो उल्टा दिखता था. जब शुरू-शुरू में समझ ही नहीं आता था 2/3 लिखा है, तो 2 रन पे 3 विकेट हुए हैं या 3 रन पे 2 विकेट हुए हैं. तो वो फन था, बट जब तक वो यस, स्कोर डबल डिजिट्स में नहीं जाता था, तब तक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन तो तब रहता ही था ही. कंफ्यूजन हो जाता ऐसी कुछ मेमोरी है. सुशांत, छोटी-मोटी? और मेमोरीज तो बहुत है. मतलब ये ऐसा टूर होता है ना जहाँ पे वो लंच टाइम और कॉफी ब्रेक भी मिस नहीं होता, टीवी बंद नहीं होता, हम टीवी कंटिन्यूसली चालू होता है. फॉर राइट. मी द मेमोरी गोज बैक टू 1992 का वर्ल्ड कप. दैट इज व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड और डैडी हुँ, देखा करते थे. और वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, तो सुबह उठ के वो टीवी लगाया करते थे और हम लोग भी उनके साथ ही देखा करते थे. और इंडिया की जर्सी वो बीच में उन्होंने ली थी ना, पर्पल डार्क ब्लू कलर की हुआ करती थी. यस, यस, यस. आई मीन वो वहां से जो शुरू हुआ है ना, देर इज समथिंग डिफरेंट. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं ना, तो वो लश ग्रीन आउटफील्ड्स, वो मजेदार, मतलब वो मजा आता है रनिंग बिटवीन द विकेट. टेस्ट मैच का असल मजा वहीं पे देख के आता है करके. सो करेक्ट. बहुत सी मेमोरीज है, एंड आई एम श्योर थ्रू आउट दिस कोर्स ऑफ 5 टेस्ट मैचेस there are going to be extremely good memories as well. You said this,
कि we are going to be live, not live, but we are going to cover each and every day of the test match which is being played. And Right. for all our friends who have been supporting us for a long, long time, we urge you, if you want to be on this podcast, if you are as passionate as we are, if you have something interesting to share, do write to us, post your comments, or Correct. send a message in DM. We will be happy to host you, because all we want over here is बंदा दिल से बात करे, दिल से कनेक्ट करे, और रिलीव करते हैं यार, एक यादें बनाते हैं. बिकॉज न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तो हक बनता है. एंड आई होप कि यहाँ से कुछ अच्छा निकले, बिकॉज इसके बाद अभी क्रिकेट शुरू होने वाला है. वी हैव चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप, फिर आईपीएल आएगा, एंड होपफुली वी क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स ऑफ द आईसीसी एज वेल. उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. Important. Yes. Very important. Correct. So just one parting thought, because you mentioned father, तो मेरे को भी ना मेमोरी वहीं से चालू होती है. क्या है कि मैं जब बचपन का मेरा याद करता हूँ ना, you went to 1992, ऑल्दो मैं तो काफी छोटा था तब, बट उसके थोड़ा से टाइम बाद कैसा रहता था, 4 साढ़े 4 होते थे, अर्ली मॉर्निंग, ठंड, उज्जैन में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ती है, तो देयर यूज टू, पापा कैसा रहता था ना, ग्लास में चाय फिल करते थे और थोड़े सिगरेट, साथ में सिगरेट चलती थी पापा की. रूम यूज टू बी फिल्ड विद चाय की खुशबू और वो सिगरेट का वो थोड़ा सा वो जो जो रहता है, तो उसी हाँ. से नींद खुलती थी. मैं रजाई में से उठता था और पापा से पूछता था क्या सीन है स्कोर वोर का, बोले यार ये चल रहा है. तो वो जो है ना वो माइंड में बिल्कुल सेट है. एंड आई बिलीव दैट इज द सेम विथ यू एज वेल, ऑल्दो ये सारे चीजें नहीं है, बट कैसा है कि आई हैव ग्रोन अप लाइक दिस ओनली. तो इट इज वेरी मेमोरेबल एंड इट इज लाइक आई कनेक्ट माई सेल्फ. जब भी मैं मैच देखता हूँ तो my dad is always there with me, although he has passed away, but psychologically he is there with me. So Yeah. every series, every study series is very interesting for me, is because I remember, it may be insignificant for a lot of viewers, but कैसा है कि when my dad was diagnosed with cancer, तो हम लोगों ने जो रूम लिया था, इट हैड टीवी, उस पे इंडिया की सीरीज चली थी बांग्लादेश की, व्हेन इंडिया विजिटेड बांग्लादेश लास्ट टू लास्ट ईयर. तो हम लोगों ने सारे सेशंस देखे, मतलब सोचो इतनी इररिलेवेंट सीरीज बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, वो भी हमने देखी. सो यू कैन इमेजिन द पैशन दैट वी कैरी व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और एनी ऑफ द सीरीज. तो दिस इज हाउ व्हाट यू मेंशन्ड, दैट दिल से बात करे, इंसान दिल से बात करे. बिकॉज क्या होता है ना, आप पॉडकास्ट पे आ रहे हो, आप किसी भी सेगमेंट पे आ रहे हो, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग योर हार्ट आउट, वो फ्लेवर नहीं Yeah. आता, वो जज्बा नहीं आता, और वो पैशन बाहर निकल के नहीं आ पाता कि नहीं यार, यही तो इसी रीजन के कारण तो हमने स्टार्ट करा था. बिकॉज मेरे ऐसे, आपके ऐसे काफी लोग हैं जो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट क्या होता है कि देयर इज हेजिटेंसी व्हेन इट कम्स टू कैमरा वाला व्यूइंग. बट दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम हर किसी को बुलाएंगे, whosoever is interested they can definitely join in. All you have to do is just pitch in, either me or with Sushant, yeah, this is what we are going to discuss, we are interested in joining you. And JPL Talkies is going to be that platform जहां पर हम लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को एक एक फैमिली सीरीज बनाएंगे जो कि फुल ऑफ पैशन Yep. रहेगा. Correct. So it was a crazy experience. 28 minutes have gone by. I wasn't expecting this segment where we haven't discussed much, इतना ज्यादा बोलेंगे, बट दिस इज हाउ क्रिकेट इज. इट जस्ट, मतलब उसके इसका कुछ एंड ही नहीं है. सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू the other segment before the toss happens, and Sushank is going to cover a lot of things when it comes to the technical aspects of Perth, the wicket, the analysis, which is going to be very helpful. I'm telling you, it is going to be very helpful, because जब आप जाके वो स्टेडियम में, नॉट स्टेडियम में, जब आप मैच चालू करोगे, you'll realize कि what we spoke about, सेशन बाय सेशन जो ब्रेकडाउन होगा, it is definitely going to be helpful in terms of viewership. So thank you everyone for joining in. Sushank, any parting thoughts before you wrap up? Nothing. You just helped us with the definition कि हम इंडिया में बोलते हैं ना कि क्रिकेट हमारे रग रग में बहता है, and this is the exact reason. मतलब एक गेम ही तो है, बट इसको जिस तरह से देखा जाता है वही एक एक्सपीरियंस है, वही यादें है. मतलब Correct. उसी को लेके हम जीते हैं. यू टुक मी डाउन द इयर्स, मतलब आज यू शेयर्ड अ ग्रेट मेमोरी ऑफ योर्स, और वही हम करना चाहते हैं यहाँ पे. जस्ट यादें जीना चाहते हैं और यादें बनाना चाहते हैं. और Correct. इसीलिए फर्स्ट टाइम एवर हम लोग ऑस्ट्रेलिया सीरीज साथ में जिएंगे, देखेंगे. टुमारो वी आर गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे जो पिछली 4 टेस्ट मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, हमने बात की है, उसको थोड़ा डिकोड करेंगे कि विकेट एक्चुअली खेलता कैसा है. जो फर्स्ट इनिंग्स में हमने बोला है कि ज्यादा बहुत अच्छा होता है बैटिंग करना, वो क्यों है, सेकेंड इनिंग्स में क्या होता है करके. तो ये कुछ चीजें हम लोग देखेंगे बाय होपफुली. बहुत सारी लाइकली 11 आजकल ट्विटर पे आ रही है, बट टुमारो देयर आर हाई चांसेस दैट वी विल गेट द प्लेइंग 11.
और हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. एंड देन फॉर यू ऑल, दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन. JPL टॉकीज इज फॉर यू ऑल, जो हमेशा Right. अपने दिल की बातें खोल के सबके सामने रखना चाहते थे. सबके सामने छोड़ दो, खुद की बातें खुद के सामने रखना चाहते थे. दिल खोलो और बोलो, बिकॉज यहाँ पे खुद को सुनो, खुश रहो, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू गिव. ये जो रोज की जो लाइफ हमारी चल रही है ना, ये ना पॉलिटिक्स में हम कर पाएंगे, ना ही कुछ और में कर पाएंगे. बट यहाँ पे आके एटलीस्ट जो इस चीज को हमें पसंद है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, वो दिल की बात यहाँ पे रखो, खुश रहो, एंड देन गो बैक हैप्पी टू योर फैमिली, एंड दैट्स ऑल वी Exactly. वांट फ्रॉम यू. Right. Right. Amazing parting thoughts, Sushant. दिल से बोला, and I could connect actually. So looking forward to having such meaningful conversations with you and many others who are going to join in. And thank you everyone for watching.